Hello students. Today we will start third part of chapter number 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. In this part we will mainly talk about support for socialism. In this we will see that how socialism was spreading in different parts of the world, especially in different countries of Europe. The Russian Revolution, one very important event of this chapter that also we will see in this part. The Russian Empire in 1914, World War started in 1914. At that time, what was the situation in Russia? That also we have to see. Economy and society. What was the condition of economy and how society was divided, how social activities were happening. So all these things we have to discuss in this part of the video. We will first of all discuss about support for socialism. By the 1870s, socialist ideas spread through Europe. Now socialist ideas were spreading in different parts of Europe, and there was one organization called Second International, that was called Second International, and they were spreading this idea of socialism in different countries of the world, especially in the Europe. Then workers in England and Germany began forming association. नाउ अब एक एसोसिएशंस यूनियन बनने लगी. किसकी यूनियन? वर्कर्स की. इंग्लैंड में, जर्मनी में अब लोग इकट्ठा होने लगे एंड दे स्टार्टेड रेजिंग देयर डिमांड्स, स्टार्टेड रेजिंग देयर प्रॉब्लम्स बिकॉज द वर्किंग कंडीशन फॉर workers, laborers, that was not so good, especially in industries. The condition of peasants was also not good. So such type of people started uniting and forming some organizations which spread the idea of socialism. In Germany, these associations worked closely with the Social Democratic Party. ये एक नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट है, SPD. सो फुल फॉर्म इज आस्क्ड समटाइम्स इन 1 मार्क क्वेश्चन ऑल्सो. सो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी. बाय 1905 सोशलिस्ट्स ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म लेबर पार्टी. अब इसमें स्पेशली लेबर्स का सपोर्ट था इन ब्रिटेन and the Socialist Party in France. So till now we have seen in major countries of Europe like Britain, France, Germany, यहाँ पे सब जगह सोशलिस्ट पार्टीज बनने लगी थी, जिसमें मेनली कौन था? वर्कर्स, लेबर्स. सो they were uniting together against their governments. Now we will talk about second important topic of this part, that is the Russian Revolution. Socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1917. इसमें दो रेवोल्यूशन हुए 1917 में, एक फरवरी में और दूसरा अक्टूबर में. So after this, Russia became a socialist country. And Lenin, Vladimir Lenin, came to power. He was the hero of this revolution. So that part we will see in future, in next part. Before that, what was the important event that I would like to tell you in brief. ये रशियन रेवोल्यूशन में ब्रॉडली हुआ क्या था? द फॉल ऑफ मोनार्की, यानी जो किंग का रूल था, मोनार्की सिस्टम, वो ख़त्म हो गया. And the new government was formed under the leadership of Lenin.
ये एक मेजर चेंज था जिसे हम रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं, या जिसका एक सबसे बड़ा रिजल्ट था कि मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो गया। वहाँ पे रशिया में किंग को ज़ार कहते हैं, TSAR इज़ द स्पेलिंग। सो दिस हैपेंड इन 1917। तो ये चेंज जो आया मोनार्की से एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनना, ये सबसे बड़ा चेंज था रशियन रेवोल्यूशन का 1917 में। सो दिस इज पॉपुलरली नोन एज रशियन रेवोल्यूशन। द रशियन एम्पायर इन 1914। अब 1914 में जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो रशिया में क्या सिचुएशन थी, ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है समझने के लिए। ज़ार निकोलस सेकंड वॉज द रूलर इन 1914। ये रूल कर रहा था, इसका शासन चल रहा था, ज़ार निकोलस सेकंड। और वो उसमें मेन मोटिव क्या था इसका, कि अपनी टेरिटरीज को बढ़ाना। एंड दैट इज़ वाई ही इन्वॉल्व इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का एक बहुत बड़ा रीज़न था कि अपनी टेरिटरीज को और बढ़ाना। हालांकि इस समय काफ़ी एरियाज इनके पास थे, जैसे प्रेजेंट फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारस। ये जो प्रेजेंट ये कंट्रीज़ हैं, ये सारा रशिया में था। Despite of that, they wanted to increase their territories. So that is why Russia was involved in the First World War. जबकि उसका रशिया का काफ़ी नुकसान भी हुआ इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और फिर 1917 में when Lenin came to power, he withdrew from the First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से वो तब बाहर आए, वो निकल गए जब लेनिन पावर में आए। लेकिन उससे पहले 1914 से 17 तक रशिया वॉज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उससे काफ़ी इसको नुकसान भी हुआ। नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ज़ार निकोलस सेकंड who was ruling in 1914 in Russia. Then this is the map given in your textbook also. Here you can see the political countries which were existing in 1914. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि different colors are used to show a group of powers. Central powers कौन सी थी, allied powers कौन सी थी, जो अलग अलग ग्रुप्स बने हुए थे वर्ल्ड वॉर के टाइम में, उनको यहाँ पे अलग अलग कलर से दिखाया हुआ है। दिस पिक्चर इज गिवन इन अ बुक ऑल्सो। सो बाय दिस मैप you can understand that how Europe was divided into various groups, और वो ग्रुप्स के बीच में ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सो दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल। देन द मेजॉरिटी रिलीजन। अब रिलीजन सोसाइटी में क्या फीचर्स थे, उस समय एक रिलीजन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। द मेजॉरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स। रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, सबसे ज़्यादा लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के थे। देन विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीन ऑर्थोडॉक्स चर्च। उनका ओरिजिन जो है, बेसिकली जो ग्रोथ हुआ, वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ये मेन रिलीजन था रशिया में। एंड बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड, इनके अलावा दूसरे भी थे, एक कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ये भी क्रिश्चियन ही थे, बट दीज आर यू कैन से ब्रांचेस ऑफ क्रिश्चियनिटी। एक ऑर्थोडॉक्स हो गया, एक कैथोलिक्स हो गए, और तीसरा प्रोटेस्टेंट हो गए। ये हैं सारे क्रिश्चियन ही, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा डिवीज़न है, उनके बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। सो दीज वर बिसाइड दीज दे वर मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, बट दे वर लेस इन नंबर। ये लोग कम नंबर में थे।
देन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एग्रीकल्चर की क्या पोजीशन थी। अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। बिल्कुल सिंपल सी बात, 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, उसी से उनका काम चलता था। दिस पॉपुलेशन वॉज हायर देन द मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में एग्रीकल्चर में नहीं लगी थी, देयर वर अदर ऑक्यूपेशंस। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में लगे थे, इंडस्ट्रीज में कम थे। दिस प्रोपोर्शन वॉज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज जब हम कंपेयर करते हैं। सो इन फ्रांस and Germany it was 40% and 50% respectively। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर में रिलेटिवली काफ़ी कम पॉपुलेशन थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी जो कि 85% है। देन सेकंड मेन पार्ट ऑफ द सोसाइटी और ऑक्यूपेशन वाज इंडस्ट्री। Prominent industrial areas were St. Petersburg and Moscow. These were the two big industrial cities of Russia at that time, Petersburg and Moscow। वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। Today also these are the important cities of Russia। Many factories were set up in the 1890s। उस समय काफ़ी इंडस्ट्रीज लगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हुआ, यानी कि बाहर के लोगों ने भी यहाँ इन्वेस्टमेंट किया। कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन स्टील आउटपुट क्वार्टर्ड, मीन्स 4 टाइम्स आयरन एंड स्टील के प्रोडक्शन में जंप आया, इंक्रीज आया। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स यू कैन से ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। नाउ इन इंडस्ट्रीज वर्कर्स वर डूइंग वर्क, लॉट ऑफ वर्क, सारा वर्क तो वर्कर्स ही करते थे। अब उनकी सिचुएशन कैसी थी, क्या बहुत अच्छी थी या अच्छी नहीं थी? सो दिस इज द मेन पॉइंट, क्योंकि इन दिस रशियन रेवोल्यूशन मेनली वर्कर्स वर इन्वॉल्व, पेजेंट्स वर इन्वॉल्व। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वाई वर्कर्स एंड peasants were involved in this Russian revolution। उनमें ऐसी कौन सा डिससेटिस्फैक्शन था जिसके कारण वो इस रेवोल्यूशन में इन्वॉल्व हुए? मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी। एक तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज थी, इंडिविजुअल कंट्रोल था, गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज बहुत कम थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज इंडस्ट्रीज, लार्ज जो इंडस्ट्रीज थी, बड़ी इंडस्ट्री फैक्ट्रीज थी, केवल उसे वो गवर्नमेंट देखती थी। और वहाँ पे वर्किंग आवर्स, वेजेस, सैलरी वो भी ठीक ठाक थी, रूल्स रेगुलेशन ठीक थे। बट इन प्राइवेट इंडस्ट्रीज देयर वाज नो फिक्स टाइम, नो फिक्स सैलरी, नथिंग वाज डन फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो वहाँ प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा थी, बिकॉज द मेन मोटिव वॉज प्रॉफिट। कंपनी के मालिक ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे, इसलिए वर्कर्स की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। देन इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप्स द वर्किंग डे वॉज समटाइम्स 15 आवर्स। जैसा कि मैंने बताया आपको कि वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं थे और कहीं कहीं पे ये 15 आवर्स थे, कंपेयर्ड विथ 10 और 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज। तो कुछ ऐसे क्राफ्ट यूनिट्स थे, स्मॉल वर्कशॉप्स थे, जहाँ पे तो 15-15 घंटे काम लिया जाता था। फैक्ट्रीज में भी 10 से 12 घंटे काम लिया जाता था। आज इंडिया में 8 आवर्स इज़ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। किसी भी लेबर से, वर्कर से एक दिन में 8 आवर्स काम लिया जा सकता है। सो दिस इज लॉ इन इंडिया नाउ, इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। बट एट दैट टाइम वर्किंग आवर्स वर नॉट फिक्स्ड, रूल्स वर नॉट वेरी क्लियर,
and that is why workers were exploited. Accommodation, उनके रहने की जगह, varied from rooms to dormitories. रूम्स थे कहीं पे डॉर्मेट्रीज थे. अब ये डॉर्मेट्रीज क्या होता है? हेयर यू हैव वन पिक्चर ऑफ वन डॉर्मेट्री. एक बड़ा सा हॉल है और उसमें लाइन से आप देखोगे कि लोग सो रहे हैं. सो यू कैन से डॉर्मेट्री मतलब एक बड़ा हॉल जिसमें कई सारे बेड हो सकते हैं और उसमें लोग रहते हैं एक साथ. सेपरेट रूम्स नहीं होते हैं. सो दिस इज कॉल्ड डॉर्मेट्री. सो दिस इज वन पिक्चर ऑफ दैट टाइम. डॉर्मेट्री का ये एक पिक्चर है जो कि उस समय का है. देन वर्कर्स वर डिवाइडेड सोशल ग्रुप्स. अलग अलग ग्रुप के थे. वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल. वर्कर्स सारे एक ही कैटेगरी में नहीं थे. कुछ नॉर्मल थे जो कि अनस्किल्ड थे. अ मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉल्ड metal workers considered themselves aristocrats among other workers. जो वर्कर्स मेटल वर्कर्स थे वो थोड़े सुपीरियर माने जाते थे. देन वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर. वुमेन उनका परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा था फैक्ट्री में. वो भी करीबन 31% काम करते थे. सो यू कैन से इन 1914 large number of women were working in an industries. But what was the problem? Problem was they were paid less than men. Men and women की जो सैलरी थी उसमें डिफरेंस था. वुमेन को सैलरी कम थी. डिस्पाइट डिवीजन वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक. तो हमने देखा कि वर्कर्स अलग अलग कैटेगरी के थे. कुछ स्किल्ड थे, कुछ अनस्किल्ड थे, कुछ ज़्यादा जिन्हें सैलरी थी थोड़ी. लेकिन उसके बावजूद व्हेन दिस रेवोल्यूशन रशियन रेवोल्यूशन हैपेंड ऑल दीज वर्कर्स वर यूनाइटेड. वो एक साथ आ गए थे. सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रेवोल्यूशन. देन अब हम एक और पार्ट देखते हैं, एक अलग कैटेगरी, पेजेंट्स यानी फार्मर्स. उनकी क्या पोजीशन थी? क्या उनकी पोजीशन अच्छी थी या ख़राब थी? इन द कंट्री साइड यानी जो विलेजेस, आउटर एरियाज, पेजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड. नॉर्मली फार्मर्स ही कल्टिवेशन का काम करते हैं. बट द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन लार्ज प्रॉपर्टीज़. लेकिन लैंड जो थी वो सबसे ज़्यादा नोबल लोगों यानी कि जो ज़ार यानी किंग की फैमिली से रिलेटेड थे, नोबल्स थे, चर्च के लोग थे, उनके पास लैंड प्रॉपर्टी ज़्यादा थी. और जो एक्चुअल फार्मर थे, जो असल में खेती करते थे, उनके पास लैंड कम थी या नहीं थी. सो this was the position of worker or you can say peasants. उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी. In Russia, peasants wanted the land. Now this was one major demand. Russian peasants wanted land because they were doing they were producing crops, they were cultivating. So this was a one important demand on in the Russian Revolution. रशियन रेवोल्यूशन होने के पीछे ये एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि उन्हें लैंड दी जाए. फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट. और इसी कारण से समटाइम्स दे रिफ्यूज टू पे रेंट. जो लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था वो भी देने से मना कर देते थे. क्यों? बिकॉज दे वर नॉट ओनर्स, दे वर पेइंग रेंट. और काम वही ज़्यादा करते थे, मेहनत उनकी रहती थी. इन 1902 दिस अकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ रशिया. इस तरह के जो नॉन पेमेंट ऑफ रेंट था ये काफ़ी ज़्यादा हुआ 1902 में और फिर 1905 में. सच इंसिडेंट्स
took place all over Russia. फिर उसी का एक बड़ा रूप स्ट्राइक्स वगैरह का 1905 में देखने को मिला. दैट वाज आल्सो कॉल्ड ड्रेस रिहर्सल ऑफ 1917 रेवोल्यूशन. 1917 के पहले का एक जो मेन रेवोल्यूशन था वो 1905 में आया था, जिसमें पेजेंट्स वर्कर्स इन्वॉल्व थे. देन Russian peasants were different from other European peasants in another way. Russian peasants जो थे ना, they were different. यूरोप के दूसरी कंट्रीज के जो लोग थे, पेजेंट्स थे, फार्मर थे, उनसे ये लोग थोड़ा अलग थे. किस तरह से अलग थे? दैट यू सी. दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर. पूल्ड यानी कि इकट्ठा करते थे अपनी लैंड को periodically, and their commune mere divided it according to the needs of individual families. मीर जो कि एक मतलब एक तरह से इंचार्ज होता था. So that he was dividing land among people, among peasants according to needs. So this was one important thing which was not seen in different parts of Europe. Then here you can see one scene of unemployed peasants is shown. It means there was lot of problem of unemployment. Unemployment की एक serious problem वहाँ पर थी. Then so then this third part of this video, we have seen some important things of Russian Revolution. We got one broad idea of Russian Revolution. We got some idea of economy and society. Especially we discussed about industries, workers, peasants. उनकी condition कैसी थी? And broadly we have seen that their condition was not good. And that was one big reason why the Russian Revolution took place in 1917, which brought a big change, जिसने बहुत बड़ा चेंज लाया. यानी कि मोनार्की सिस्टम खत्म और socialist government was established. This was a change. So this is all about this third part. We will continue this chapter in fourth part. Thank you and have a nice day.